پاکستان کا صوبہ بلوچستان اپنی روایتی کھانوں کی وجہ سے پورے ملک میں الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہاں پہ روٹی مختلف طریقوں سے بنتی ہے، جس میں کرنو یا کاک کو گرم پتھروں پہ لپیٹ کر پکایا جاتا ہے۔ اسی طرح وری کو گرم ریت میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، شتی کو گرم انگاروں کے اوپر رکھ کر پکایا جاتا ہے، اور اشت پشت کو 2 گرم پتھروں کے درمیان رکھ کر پکایا جاتا ہے۔ مکران اپنی مچھلی کی ڈشز کی وجہ سے خاصی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ مچھلی سے مختلف اقسام کے پکوان تیار کرتے ہیں۔ یہ روایتی پکوان اپنے لذیذ ذائقے اور بنانے کے منفرد طریقے کی وجہ سے خاصی دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں۔ آج بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں لوگ ان قدیم ڈشز کو شوق سے بناتے ہیں، اور انہیں بنانے کی ترکیب صدیوں سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں کو یہاں بننے والی مخصوص ڈشز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بلوچستان کے روایتی کھانوں کی ویڈیو سیریز میں ہم آج آپ کو اشت پشت یعنی بلوچی پیزا بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اشت پشت یہاں کی قدیم ڈشز میں سے ایک ہے، جس میں چھوٹی مچھلیوں کو آٹے میں گوندھ کر اس کو پھیش کے پتوں سے بنے پین نما گول فریم میں ڈال کر 2 گرم پتھروں کے درمیان پکایا جاتا ہے۔ اشت بلوچی زبان میں پتھر کو کہا جاتا ہے اور پشت اس کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ گول اور پیزا سے مشابہت کی وجہ سے اسے بلوچی پیزا کہا جاتا ہے۔ یہ پکوان صرف دریا میں پائے جانے والی چھوٹی مچھلیوں سے بنتا ہے، جسے مقامی زبان میں کور یعنی دریا والی مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس پکوان کا طریقہ سیکھنے کے لیے مجھے کیچ کے علاقہ بلیدہ جانا پڑا۔ ایک لمبے اور تھکا دینے سفر کے بعد میں اپنے دوست ایاز بلیدی کے پاس کیچ پہنچا، اور وہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ بلیدہ میں گشکور کے خوبصورت علاقے گئے تاکہ اس روایتی ڈش کو بنا سکیں۔ اشت پشت دریا میں پائی جانے والی چھوٹی مچھلیوں اور آٹے میں تیار کی جاتی ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دریا سے مچھلیاں پکڑیں۔ جال کو پانی میں گول شکل میں لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں۔ پھر مچھلیوں کو پکڑ کر فیش سے بھرے چھوٹی ٹوکریوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ خراب نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے 2 بڑے ہموار پتھروں کا انتخاب کیا اور جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ اس سے پتھروں کو گرم کر سکیں۔ دونوں پتھروں کو ورٹیکل پیرامڈ کی شکل میں رکھا تاکہ اس کے درمیان آگ لگا سکے۔ آگ لگا کر اسے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس دوران بار بار پتھروں کے نیچے سے نئی لکڑیاں ڈالی تاکہ پتھر اچھی طرح سے گرم ہو سکے۔ اس کے بعد ایک تھال میں پانی ڈال کر حسب ذائقہ نمک ڈال کر اس میں آٹا شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے گوندا۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو اس میں چھوٹی مچھلیوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کیا۔ اس کے بعد پھیش کا بندوبست کیا تاکہ اس سے اشت پشت کا فریم اور پتھروں کو اٹھانے کے لیے رسی بنا سکیں۔ پھیش کو اردو زبان میں مزری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خودرو پودا ہوتا ہے اور بلوچستان کی زمین اس کی پیداوار کے لیے بے حد مفید ہے۔
इस पौधे का इन्हिसार बारानी पानी पर होता है। मिस्री के पत्तों से यहाँ चटाई, झाड़ू, हाथ के पंखे, जाए नमाज, टोपियाँ, टोकरियाँ, रस्सी वगैरह बनाए जाते हैं। बाज मजेदार है इसी इनु चुंकू अंते तो का ना ये चुंकू अंते ऐसा कुछ हम जायका हम सब बाज वशी चुंकू नहीं शुरू तो एक के कम टेस्ट आबेगे चुंकू वशी सरुके बार बाज वशी ना हाँ हमारे साथ ये कुछ शी अभी हो जाए तो बार को मेरे को वास भला भला मजा ना साथ ये वंडो के पीछे नुकसाने दे मजा इंगेड़स थे ना शर्मा उसे जीरो तो टेस्ट बगैर इश्त पुश्त के लिए सब्ज और बड़े पत्तों वाली फीश का इंतखाब किया जाता है। इसके बाद फीश के बड़े पत्तों को चुनकर अलग किया जाता है। इनसे 2 इंच चौड़ा और 1.5 मीटर लंबी एक पट्टी बनाई जाती है जिसे फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फीश के 4 पत्तों को एक साथ बुना जाता है। जब एक पत्ता ख़त्म होता है तो दूसरे पत्ते को इसके साथ रखकर बुना जाता है। जब ये पट्टी 4 फुट तवील हो जाती है तो इसके दोनों सिरों को जोड़कर एक गोलनुमा फ्रेम बनाया जाता है। इसके अलावा फीश के पत्तों से 2.5 मीटर की 2 रस्सियां बनाई जाती हैं ताकि इससे गर्म पत्थरों को उठा सकें। इसके बाद एक हमवार जगह पे गंज के पत्तों को डालकर इसके ऊपर कपड़ा या शीट बिछाई जाती है ताकि नीचे से आटे पे मिट्टी न लगे। इसके बाद फीश के पत्तों को रखकर इसके ऊपर फीश से बने फ्रेम को रखा जाता है। फिर फ्रेम के अंदर आटे में मिक्स मछलियों को डालकर आटे को अच्छी तरह से फ्रेम में फैलाया जाता है। अपने हाथों पे पानी लगाया जाता है ताकि आटा इसके साथ न चिपके। इसके बाद बची हुई मछलियों को ऊपर डालकर फैलाया जाता है। आखिर में फीश के पत्तों को आटे के ऊपर रखा जाता है ताकि आटा गर्म पत्थर के ऊपर न चिपके और आहिस्ता आहिस्ता पक जाए। जब पत्थर अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसके नीचे से कोयलों को निकालकर पत्थर डाल दें ताकि गर्म पत्थरों को उल्टा करने में आसानी हो और ये सीधा गिरने की वजह से टूट न जाए। इसके बाद लकड़ी की मदद से गर्म पत्थरों को ज़मीन पर लिटाया जाता है।
इसके बाद फीश के पत्तों में बंद फ्रेम को गर्म पत्थर के ऊपर रखकर दूसरे पत्थर को रस्सी की मदद से इसके ऊपर रखा जाता है। पत्थर बहुत गर्म होते हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पत्थरों के ऊपर वजन रखा जाता है ताकि आटा अच्छी तरह से दब जाए। इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान पत्थरों के साइड से आप फिश के सब्ज पत्तों को सफ़ेद और पीला होते देख सकते हैं, जो कि इस बात की निशानी है कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। 20 से 25 मिनट के बाद ऊपर से वज़न उठाकर गर्म पत्थरों को रस्सी की मदद से उठाया जाता है। फिश के पत्तों को साफ किया जाता है। बलूची पिज़्ज़ा या इश्क पुश्त तैयार है। गरम खाने का अपना एक मुनफरिद जायका है, लेकिन आप इसे सफ़र में भी साथ ले जा सकते हैं। पकने के बाद ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता। लोग इसे तोहफे के तौर पर भी ले जाते हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक रोटी है जिस पे आप मछलियाँ आप ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ बलूची में इश्ता पुश्ता बोलते हैं। थोड़ी सी अभी हमने इसको रिसेंटली आग से निकाला है, थोड़ा सा ये गर्म है। तो आप देख सकते हैं इसमें मछली की पूरी वो जैसे लग रहा है कि प्रिंटेड हुआ है। उसमें अब मुख्तलिफ साइज़ के मछलियाँ हैं और उसके आप बैकग्राउंड आप इसका देखते हैं पीछे, तो ये आटा है और वो एक अच्छे तरीके से पका हुआ है। और ये बिल्कुल इसका जो आप ब्राउनिश कलर देख सकते हैं वो बड़ा खूबसूरत सा है। और सामने ये मछली की जो डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये टेस्ट करके आपको बताएंगे, इसको थोड़ी सी तोड़ के बताएंगे। इसके ऊपर भी मछलियाँ डाले हुए हैं, इसके अंदर भी मछलियों का एक पूरा मिक्सचर ऐड किया हुआ है। तो ये आप थोड़ी सी इसके अंदर वाला व्यू देख सकते हैं कि अंदर से भी इसके अंदर वो मछलियों के छोटे छोटे पीसेस हैं और रोटी के हैं। को टेस्ट करके बताऊं तो टेस्ट इसका बड़ा यूनिक सा है। इसमें 3-4 फ्लेवर इसमें है। टिपिकल वो आटे का फ्लेवर है, मछली का फ्लेवर है, फिर थोड़ी सी वो जो फिश है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर वो पत्ते हैं, उसकी भी फ्लेवर इसमें ऐड हुआ है। और ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी पूरा हो गया है। और मछली जिसमें जो अच्छे तरीके से पड़ के बिल्कुल आप मुंह में आप डालते हो वो घुल जाते हैं। तो शुक्रिया। मैं आखिर में नाको, अली मोहम्मद और कबीर मुबारक का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे बलूची पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सिखाया। अगर आपने पहले बलूची पिज़्ज़ा बनाई है या इसके बारे में सुना है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। वशी वतन में मातरम, वशी वतन